سیاست میں آنے کا مقصد ملک کو مافیاز کے قبضے سے چھڑانا اور غربت کا خاتمہ ہے۔ اشرافیہ نے پوری قوم کو یرغمال بنا کر انہیں بنیادی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو حقیقی فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا معروف امریکی اسلامی اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو۔ خطے کے امن کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر ہے۔ افغانستان میں بہتری کے لیے امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان 35 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ کورونا وبا کے باعث پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام عالم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا اشخاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کی سربراہ اجلاس سے خطاب۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کی جانب سے 2000 روپے میں ووٹ خریدنا شرمناک اقدام ہے۔ یقین ہے الیکشن کمیشن نون لیگ کی وائرل ہونے والی ویڈیو پر نوٹس جاری کرے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ گھبراہٹ انہی لوگوں کو ہو رہی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے پاس اپنی جائیدادوں کے ثبوت ہی موجود نہیں۔ لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہوگا یا جیل جانا ہوگا۔ پی ٹی آئی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ وزیر اطلاع چوہدری فواد حسین کا جہلم میں جلسے سے خطاب۔ اور مسلم لیگ نون کی جانب سے این 133 میں کھلم کھلا ووٹ خریدنے پر الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا ہوگا۔ ایکشن لینے میں تاخیر کی گئی تو الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ خریدنے پر نااہل کر کے سخت سزا دی جائے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کیا ٹی وی کے معزز ناظرین صرف تلخ کلامی، الزام تراشی کو ترجیح دیتے ہیں یا توازن اور ٹھہراؤ میں بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں؟ پتہ چلے گا۔ کیا جمہوری قدریں ہر گھرانے میں جڑ پکڑتی ہیں یا منتخب ادارے اور آزادی اظہار سے جنم لیتی ہیں؟ سوال اٹھائیں گے، مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی، شور نہیں، ہنگامہ نہیں، بلیم گیم نہیں، بات چیت ذمہ داری کے ساتھ۔ دیکھیے جاوید جبار اور ہما بقائی کے ساتھ مکالمہ ہر ہفتہ اور اتوار رات 10:05 صرف ویلکم بیک ناظرین۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے ان کے سیاست میں آنے کا مقصد ملک کو مافیاز کے قبضے سے چھڑانا اور غربت کا خاتمہ ہے۔ معروف امریکی اسلامی اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور اس مقصد کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارا ملک حکمران طبقے کی دولت کی ہوس اور ذاتی مفادات کے باعث ان صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ اشرافیہ نے پوری قوم کو یرغمال بنا کر انہیں بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی جدوجہد کا مقصد پاکستان سے ان مافیاز کا خاتمہ ہے۔ Lack of rule of law is the reason why we haven't achieved our potential. No society can ever achieve its potential if there is not rule of law, because merit is also associated with rule of law. Elite, which is rich, which has captured the resources, which doesn't struggle and strive, they sit on the main positions. People don't decay, it's the elite that decays. And what our Prophet showed in Medina was that, he brought in a very selfless, an elite which looked upon him as a role model. All of them became leaders, and they just lifted the character of the entire nation.
वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जदीद तरक्की ने माहौलियाती मसाइल पैदा किए हैं। माहौलियाती तब्दीली से इंसान फितरत से बहुत दूर हट गया है। हमें आने वाली नस्लों के लिए माहौल को बेहतर बनाना है। इस सवाल पर कि उम्मत मुसलमान अपनी इज्जत और वकार कैसे बहाल कर सकती है, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करके इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है तो उसे कामयाबी नसीब होती है। Self esteem, it is the greatest trait of a human being. And la ilaha illallah, no God but Allah. That in itself gives you dignity. You know, the motto of my party when I started my party 25 years ago is Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone I worship, you alone I ask for help. True faith, iman, that in itself gives you dignity. Because just the fact that you don't bow in front of anyone but the one, that is a liberation of a human being. वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम मुश्किलात और मुखालफत के बावजूद मेरा इस बात पर यकीन रहा है कि अल्लाह ने इंसान को जद्दोजहद की ताकत दी है। हमारे हाथ में कोशिश है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारा मकसद पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिशें करना है, एक ऐसी रियासत जो अपने कमजोर लोगों का ख्याल रखे और यहाँ कानून की हुक्मरानी हो। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को एक हकीकी फलाही इस्लामी रियासत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में बेहतरी के लिए उम्मत मुसलमान को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अशकाबाद में इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान 35 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। अफगानिस्तान ने 40 साल तक जंग का सामना किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई, जिसके बायस दुनिया को महंगाई का सामना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने अशकाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ईरान हम मुसलमान और ब्रादर हमसाया मुल्क है। दोनों ममालिक के माबैन गहरे तारीखी, लिसानी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान जियो इक्तिसादी खुशहाली और इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान से तुर्की और आज़रबाईजान तक आलमी रोड ट्रांसपोर्ट से पूरे ECO खित्ते को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और मईशत के दो तरफ़ा मैकेनिज़्म के बाकायदा इजलास ज़रूरी हैं। सदर ममलिकत का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इक्तिसादी ताउन तंजीम का इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ में अहम किरदार मौजूद है। मुआशी ताउन और इलाकाई रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक्तिसादी ताउन तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तिफ़ाक़ और दो तरफ़ा ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दोनों ममालिक अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के ख्वाह हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात हुई। अशकाबाद में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मजबूत माशी शराकतदारी के लिए तजारती और सरमायाकारी के रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की बंदरगाहों के जरिए ताजिकिस्तान के लिए इलाकाई इंज़माम और रवाबित पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमसाया ममालिक अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। अफगान मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने की जरूरत है। तमाम अफगानों के हुकूक के एहतराम और अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होना जरूरी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन, मुफाहमत और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को मिलकर काम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में भी उन्होंने ताजिक हम मनसब को आगाह किया। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर सदर ममलिकत की दो अहम मुलाकातें हुई हैं। तुर्की के सदर और आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात हुई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के इक्तिसादी ताउन तंजीम का ये 15वां सरबराह इजलास है। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात हुई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनके हमरा आप देख सकते हैं मौजूद हैं तुर्की के सदर।
इस बारे में मजीद जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। इकरामुल्लाह महसूद, आगाह कीजिएगा, दो अहम मुलाकातें हुई हैं सदर मुमलिकत की। जी बिल्कुल, तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पे सदर की मुलाकातें हो रही हैं, हो चुकी हैं। अब तक तमाम जो सरबराह अरकान हैं तंजीम के, उनके सरबराहों से मुलाकात सदर ममलिकत की हो चुकी है। अभी जो हमें खबर आई है, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और माशियत को मुस्तहकम होने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में ECO तंजीम जो है, इस हवाले से इसको मजीद इस्तेहकाम देने से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है और बिलखसूस खित्ते की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो दोनों मुल्कों के रवाबित है और इस रवाबित को और मशावरत को आगे बढ़ाने के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी तरह सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव के दरमियान भी अशकाबाद में मुलाकात हुई है। इको सरबराह समिट जो है, इस मौके पर ये मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों पाकिस्तान और आज़रबाईजान जो है, इस दोनों मुल्कों के दरमियान जो मौजूदा तिजारत का हुजम है, इसको बढ़ाने के हवाले से, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से और बिलखसूस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम को मजीद फ़हाल करने के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर और तजावीज़ पर बातचीत की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह महसूद, आप हमें आगाह कर रहे थे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास अशकाबाद में जारी है। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव के दरमियान अहम मुलाकातें हुई थी। इकरामुल्लाह महसूद हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। जहलम में जलसा आम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने सवाल किया कि वोट को 2000 रुपए में खरीदना वोट को इज्जत देना है। उन्होंने कहा कि 1990 का इलेक्शन नून लीग ने धांधली से जीता था। नून लीग सियासत के बजाय फिल्में बनाने का काम शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि ओछे हथकंडों से इदारों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर मौजूद नहीं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को इमरान खान के अलावा कोई मुत्तहिद नहीं रख सकता। तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में वोट मौजूद है और तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी पार्टी है जिसने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी जरदारी और बिलावल की पार्टी है। अगले इंतखाबात में भी इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने टोबा पिंड दादन खान में ट्रॉमा सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया है। संगे बुनियाद रखने के मौके पर हल्के के अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मंसूबे पर 31 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 11 कनाल अराजी पर यह ट्रॉमा सेंटर बुनियादी मरकज़ सेहत टोबा में कायम किया जा रहा है। हादसात की सूरत में जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के साथ साथ सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्रॉमा सेंटर 2 मंजिला इमारत पर मुहित होगा जिसमें न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जनरल सर्जन की खिदमात मैसर होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने जलालपुर इरिगेशन कैनाल फेज 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया और मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जहलम के लिए एक और तोहफा अल-कादिर यूनिवर्सिटी का क़याम है। ये यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेज में एक नई जहद का इजाफा करेगी। उम्मीद है कि ये एक ऐसी आलमी दरसगाह बनेगी जिसमें तज़व्वुफ़, इस्लाम और साइंस के उलूम के स्कॉलर्स पैदा होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि स्कूल्स खुले रहेंगे। बंदिश से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। लाहौर में गोल्फ टूर्नामेंट की अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खेलों से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुतारिफ कराई है। खेल के मैदान आबाद होने से सेहतमंद माशरती सरगर्मियां जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा कि गोल्फ के खेल की तरह दीगर टूर्नामेंट भी होने चाहिए।
पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क का दर्जा पाने की मंजिल की जानिब गामजन है। गुज़श्ता 10 महीनों से मुल्क में एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से इमरान मनसब खान। कोरोना वबा की वजह से दुनिया को सेहत के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2019 में पाकिस्तान में बिलखसूस पोलियो के खात्मे की कोशिशें बुरी तरह मुतासर हुई। हुकूमती इकदाम से कोरोना वायरस पर काबू पाने की मौसर हिकमत अमली के बाद पोलियो के खात्मे की कोशिशें शुरू की गईं। लॉकडाउन के बायस मुतासर होने वाली पोलियो से बचाव की मुहिम समेत हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम को बेहतर हिकमत अमली से जल्द ही बहाल कर दिया गया, जिसके बेहतर नताइज सामने आए। सरकारी दाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह में पोलियो के केसेस में 99% तक कमी आई है, जबकि 3 माह से माहौलियाती जायजों में भी पोलियो का कोई वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो के खिलाफ जारी मौसर हुकूमती मुहिम के नतीजे में रवां साल 25 जनवरी से अब तक पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो से बचाव के हुकूमती इकदाम इसी तरह जारी रहे तो 26 जनवरी 2022 तक पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अपनी रिपोर्ट में इमरान मनसब खान बता रहे थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाल्लाह पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। 10 महीने से तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑन पोलियो डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी खबर है, 10 महीने से कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ और बड़ी कामयाबी से पोलियो मुहिम जितनी भी मुहिमात हैं वो जारी हैं और लोग ताउन भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ये खुशखबरी हासिल करेगा इंशाल्लाह और दुनिया को बताएगा कि हम पोलियो फ्री हैं। जी माशाल्लाह अच्छी न्यूज़ तो है और ये सब मरहूने मिन्नत है हमारी आवाम की, जो जिनका तआवन पोलियो टीमों के साथ पहले से ज़्यादा हो गया है और वैक्सीन लगवाने में का लोगों के में रुझान जो है वो बढ़ रहा है। अभी जो रिसेंटली मीजल्स एंड रूबेला की कैंपेन हुई है उसमें भी लोगों ने बहुत तावन किया है और हमने 9 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगवाई है। और अगर इसी तरह हमारे अवाम का तावन रहा तो हम इंशाल्लाह पोलियो फ्री हो जाएंगे। लेकिन सर यहाँ मैं एक चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ कि पोलियो फ्री होने के लिए हमें 3 साल तक किसी किस्म का कोई वायरस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी बहुत लंबा सफ़र जारी है। और दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान में कुंदूज प्रोविंस में 2 केस रिपोर्ट हुए हैं और इसका मतलब ये है कि वायरस जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में अभी भी मौजूद है। और जो पॉपुलेशन मूवमेंट, जिस तरह लोग अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ से आते जाते हैं, इस वजह से हमारी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ वायरस आ सकता है। 13 दिसंबर से हमारी कैंपेन फिर शुरू हो रही है और आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पोलियो वर्कर के साथ तावन करें और तमाम 0 to 59 मंथ बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। डॉक्टर साहब यकीनन बड़ी कामयाबी है, पिछले 10 माह से जैसे आपने फरमाया कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस कामयाबी में एक आम आदमी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है? इस कामयाबी के तसलसल के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? और ये भी फरमाइएगा कि पेरेंट्स किस तरह से ज्यादा विजिलेंट रहे पहले से। जी, इसके लिए हम सबको एज ए नेशन अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वजीर सेहत डॉक्टर फैसल और इसी तरह प्रोविंसेस में तमाम चीफ सेक्रेटरीज और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। इसी तरह मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सबको एहसास दिलाएं कि 2 कतरे 2 बूंदें पाकिस्तान के लिए भी, और जब के हम इतने नज़दीक पहुंच चुके हैं तो हम यकीनी बनाएं कि कोई भी बच्चा कतरे पिलाने से ना रह जाए। और इसी तरह हमारे जो वालिदैन हैं उनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी बच्चे को इंशाल्लाह पाकिस्तान में अब अपाहज नहीं होने देंगे और कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कतरे नहीं पिलाए, आपका अपना, आपके रिश्तेदार में या आपके नज़दीक आस पास किसी घर में कोई बच्चा या मुलाजमों में कोई बच्चा जिसने कतरे ना पिए हों, तो इंश्योर करें कि टीमों के साथ
वो कचरे पिलाएं। इसी तरह हमारी पेरेंट्स को हेल्पलाइन है। इंश्योर करना चाहिए कि तमाम बच्चे जो हैं वो पोलियो के कतरों से महरूम ना रह जाएं, क्योंकि हमें अपने मुल्क को पोलियो फ्री बनाना है। निहायत खुशाइंद बात है कि गुज़श्ता 10 माह से कोई पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ और आइंदा 3 साल के लिए भी ऐसा कोई केस रिपोर्ट ना हो। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम पोलियो फ्री कंट्री का दर्जा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इसमें जहां पेरेंट्स की बात की जा रही है, जहां पॉलिसी की बात की जा रही है, वहीं पर हमारे जितने भी पोलियो वर्कर्स हैं जो फील्ड में जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिला रहे हैं, खासतौर पर सलमा, कोरोना के दिनों में जिस तरह से इस मुहिम का आगाज़ किया गया और फिर इस मुहिम को पाया तकमील तक पहुंचाया गया, वो भी लायक तहसीन है। बिल्कुल रिजवान, और कोरोना भी खत्म नहीं हुआ बल्कि जनूबी अफ्रीका में कोरोना की एक नई किस्म सामने आने के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुतासरा मुल्कों से मुसाफरों के पाकिस्तान में दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का फैसला कर लिया है। कोरोना की नई किस्म के बारे में मजीद तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। जनूबी अफ्रीका से मंजरेआम पर आने वाली कोरोना वायरस की इस नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की अलामात में बुखार, खांसी, थकन, जायका और सूंघने की हिस्स का खत्म होना और ज्यादा संगीन हालत में सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल है। ताहम ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है या वैक्सीन के खिलाफ इतनी मज़ाहमत जाहिर करता है, इसका पता चलाने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। ओमिक्रॉन बोट्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल के बाद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब तक ओमिक्रॉन की इस नई किस्म के दर्जनों मुसद्दिका मुतासरीन सामने आ चुके हैं। I am worried because, well, it's apparently more dangerous than the previous one due to mutations. आलमी अदारा सेहत ने भी ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन हाल ही में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद पर भी हमलावर हो सकता है। NCOC ने भी हालात के तनाजुर में 5 दिसंबर के बाद सफर करने वाले पाकिस्तानियों को इंतहाई एमरजेंसी की सूरत में अस्तस्ना और जरूरी हिफाजती इकदामात मुकम्मल करने के बाद आने की इजाजत देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने पर सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लाजिम करार दिया है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कोरोना का एक और वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है, जो कि अभी पाकिस्तान नहीं आया बल्कि दीगर अफ्रीकी ममालिक में आया, जिस पर पाबंदी आयद की गई है कुछ ममालिक में पाकिस्तान में दाखिले पर, ताकि पाकिस्तान को महफूज रखा जा सके। डॉक्टर इरफान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इन्होंने काफ़ी काम किया है इस हवाले से। कोरोना का जो नया वेरिएंट है इस पर भी उनकी काफ़ी रिसर्च भी है और पेशेंट्स के हवाले से भी इनका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, एक शख्स जिसको कोरोना की अलामात जाहिर होती हैं, उसे ये कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना का कौन सा वेरिएंट है और ये पहले वाले वेरिएंट से किस तरह से मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। ओमिक्रॉन एक न्यू वेरिएंट है जो रिसेंटली 24 नवंबर को हमें बताया गया कि ये साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ है। इसकी सिम्टम्स कैसे डिफरेंट हैं, ये कैसे हमें बताएगा, ये क्वेश्चन वो हैं जो अभी हमें पता लगने हैं। बट एक चीज़ याद रखें कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं इस वक्त करंटली जहाँ पे जो हमारा कोविड केसेस है वो ऑन डिक्लाइन है। अगर गॉड फॉरबिड सडन सर्ज आती है, सडन आपके केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमें भी रेड अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी शुरू हो गई है। ये जो केस 24 नवंबर को जो इन्होंने डिटेक्ट करने का कहा, बाय द वे इसकी जो ये जो साउथ अफ्रीका में सर्च थी उससे 2 हफ्ते पहले सडन आई थी, और अभी भी उसके बारे में कि क्या वो कुछ डिफरेंस बिहेवियर रख रहा है, क्या उसमें फ्लू की सिम्टम्स ज्यादा है, क्या लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट ज्यादा है, इसके बारे में अभी भी उन्होंने कोई अपना डाटा हमें रिलीज नहीं किया हुआ। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि जो अभी तक इत्तलात हैं, WHO ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक इस वेरिएंट पर, ओमिक्रॉन पर ख़ास तौर पर जो वैक्सीनेशन है उसकी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो 40% असरियत रह जाएगी, जबकि इसके अलावा उसका जो रिएक्शन टाइम है, वायरस का अटैक टाइम और जितनी देर में वो फेफड़ों को मुतासर करता है वो बहुत कम वक्त बच गया है। अब पहले तो हम देखते थे डेल्टा कम से कम 2 से 3 दिन लेता था, लेकिन अब इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक दिन में ही अपना मुकम्मल अटैक कर देता है पेशेंट पे। देखिए, ये इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेके जा रहे हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ठीक है, आप हमें सबको रेड अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ जो बातें वो एग्जैजरेटेड हैं। अगर हम इसके बारे में देखें, इस वेरिएंट के बारे में, तो इसका डेल्टा वेरिएंट का अगर कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल ठीक है कि इस वेरिएंट में म्यूटेशन उससे ज्यादा है, 30 म्यूटेशन इसमें देखी गई हैं और ये ज्यादा ट्रांसमिटेबल है। लेकिन क्या ये वेरिएंट बहुत क्विकली सिर्फ सीवियर डिजीज में जाएगा? तो अभी हम जो पेशेंट देखें, जो कि अब आपको शायद पता है कि इटली में भी
یو کے میں بھی, اسرائیل میں بھی اور یورپ ممالک میں بھی اس کے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو 2 کیسز ایسے بھی ہیں جو کہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں, سسپیکٹڈ ہیں, لیکن وہ اسمپٹومیٹک ہیں. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ابھی ہمیں اتنی جلدی یہ بالکل ایکسپیکٹ کر لینا نہیں چاہیے کہ بالکل یہ آئے گا اور گاڈ فاربڈ ڈیڈلی وائرس کی طرح ہماری ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنی احتیاط کو اچھا کر لینا چاہیے, اور جوں ڈیٹا آتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی پریونٹیو اور پریکاشن میجر کو ایکسٹرا کر دینا چاہیے. اب دیکھیں, ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ 24 نومبر کو ڈیٹا ریلیز کیا, لیکن کیسز اس کے 2 ہفتے پہلے آئے ہیں. تو صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان ملک صاحب, آپ وقت نکالتے ہیں, پی ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کام بھی کر رہے ہیں, ویکسینیشن کے حوالے سے بھی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور مزید کچھ خبریں شامل کرتے ہیں. بالکل, خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی حسان خاور نے لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1-2 روز سے میڈیا پر آڈیو اور ویڈیو لیکس کی بات چل رہی ہے. یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کی ریت بہت پرانی ہے. ان لوگوں نے نصرت بھٹو اور دیگر خواتین سمیت کسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نہیں چھوڑا. یہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز انٹرنیٹ کے ذریعے عوام کو تو دی جاتی ہیں, لیکن کمرہ عدالت میں پیش نہیں کی جاتی. معاون خصوصی نے کہا کہ تمام مصنوعات کسی ایک فاؤنڈری سے نکلی ہیں جسے اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسلام آباد میں گھریلو کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ویمن انٹرپرینیور فیسٹیول کا انعقاد کیا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں کنزا نقوی کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں کاروبار سے منسلک خواتین کے لیے لگائے گئے فیسٹیول کا مقصد ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جنہوں نے گھریلو سطح پر اپنے کاروبار کا آغاز کیا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز ایوان نے کہا کہ موجودہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے ساتھ خواتین کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. ملک میں کاروبار دوست پالیسیوں کے ذریعے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں جن سے خواتین بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں. گورنمنٹ کے اندر کامیاب جوان پروگرام اندر آیا ہے, اس کے اندر ہم نے یہ بالکل پیرٹی نہیں رکھی. خواتین اور مرد حضرات ایکولی اپرچونٹی ہے دونوں کے لیے, وہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری خواتین آلریڈی بہت ماشاءاللہ اب کنٹریبیوٹ پوزیشن پہ آ چکی ہوئی ہیں, جہاں ان کی اپنی انٹرپرینور سکلز ہیں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. فیسٹیول کے مختلف پویلینز میں گھریلو سجاوٹ, ٹیکسٹائل, ملبوسات, آرٹ اینڈ کرافٹ اور کھانے کی مصنوعات کے حوالے سے سٹالز لگائے گئے تھے. خواتین نے فیسٹیول کے انعقاد کو اپنے کاروباری نیٹ ورک کی وسعت کے لیے مثبت قدم قرار دیا. It's a new startup launched a few months back. So we have presented our work over here. ایک کتاب ہے جو علامہ اقبال ذکر زن اس کا نام ہے, کیونکہ یہ ایگزیبیشن خواتین کے لیے تھی تو ہم نے ضروری سمجھا کہ یونیورسٹی کی وہ کتاب جو کہ اقبال نے پیغام خواتین کے لیے دیا تھا, اس کتاب کو ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے پیش کریں. بہت اچھی اپرچونٹی ہے, ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹ سے. انٹرپرینورشپ کو یہ بہت زیادہ فروغ ملے گا اس سے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ اسٹال لگا. میلے میں آنے والے افراد نے بھی گھریلو خواتین کی تیار کی گئی اشیاء دیکھیں اور ان کی کاوشوں کو سراہا. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, جو ہماری گھریلو خواتین ہیں جو اتنی محنت کرتی ہیں ان کا ہنر سامنے آنا چاہیے اور ان کی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور بہت اچھا یہ ہے, یہ سسٹم ہے, کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں ہونی چاہیے یہاں پہ تاکہ یہ گیدرنگ کا ایک بہت اچھا موقع ہو جاتا ہے. فیسٹیول میں اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی خصوصی اسٹال لگایا گیا جس میں شرکاء کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. ملکی ترقی خواتین کی ترقی میں پنہاں ہے. اس طرح کے ایونٹ سے کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کنزا نقوی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور خواتین انٹرپرینیورز کے لیے ایک رپورٹ کنزا نقوی نے تیار کی, اور آج کے پروگرام میں جو سب سے اچھی خبر سلمہ ہم نے شامل کی اپنے ناظرین کے لیے کہ پاکستان میں 10 ماہ سے پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا, اور انشاءاللہ مزید 3 سال ہیں جنہیں ہمیں پولیو فری رکھنا ہے تاکہ پاکستان کو پولیو فری کنٹری قرار دیا جائے اور دنیا میں ہماری جو ہے وہ ایک مقام اور پہچان بن سکے. یہاں پر ایک اپڈیٹ شامل کریں گے ناظرین. ابھی آپ کو